So today's class is on vision. तो yesterday मतलब कल जो हम लोगों ने पढ़ा था वो ओवरव्यू थी, ठीक है। आज जो है थोड़ी स्पेसिफिक चल रहे हैं रिगार्डिंग द एनिमल्स। तो बिल्कुल एक बार बेसिक से फिर शुरू करते हैं। दैट इज विजन इज दैट सेंस व्हिच एनेबल्स एनिमल्स टू सी द वर्ल्ड अराउंड देम। मतलब एनिमल्स रिक्वायर विजन टू survive, find food, protect themselves from predators, seek shelter and so on। मतलब काफी सारी चीजें जिसकी रिक्वायरमेंट होती है एनिमल को, जब तक वो विजुअली देख ना ले, विजुअली या फिर सही से सुने नहीं, तब तक वो उस चीज को कंफर्म नहीं कर सकता है। तो किसी भी एनिमल के सही से सर्वाइवलिटी के लिए ये सारी चीजें जो सेंसरी ऑर्गन है एग्जैक्टली बहुत ज्यादा जरूरी है। तो द मेन ऑर्गन ऑफ विजन इज द आई, ठीक है। मेन ऑर्गन इसलिए बोला गया है कि विजन के नाम पे और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे एक पीनियल ग्लैंड का नाम सुने होंगे, दैट इज कंप्लीटली रेगुलेटेड बाय द sorry the this pineal gland, this is the you can say bridge in between the endocrine system and nervous system, ठीक है। तो ये भी कंप्लीटली मतलब विजन पे ही काम करती है। तो विजन जब हम बोलते हैं तो विजन सिर्फ आई ही नहीं होती है, सेंस अलग भी होती है ना। एक समझने की सेंस होती है, टच के थ्रू होती है, ऑल्फेक्शन के थ्रू होती है। दोज ऑल थिंग्स आर द विजन, बट स्पेशली द मेन ऑर्गन फॉर द विजन इज द आई। सो द आई along with coordination with brain and their accessory systems that are produces vision. So when we talk about the parts of the eye, that is from outside to the outward to inner, that is the lens, vitreous humor, retina, optic nerve, sclera, eyelashes and eyelids, cornea, aqueous humor, iris and pupil. So these are the different parts which remains in the eye that comes from outside to inside. So when we talk about the mechanism of vision, mean to say how it works. So this visual function, this basically involves a combination of many factors. That includes the field of view, mean to say where the animal is having their object. What is the depth perception? Mean to say the animal have to judge whether the animal, the object is how much distance far from them. Focusing ability, that is also known as acuity, because it also requires some clearance. Mean to say regarding the enhancement of contrast, and so many things are there. Color like this. So acuity and perception of motion. Okay, the intensity and the color differentiation. So all these factors combinedly, they will make a visual function to an animal. So basically, again, when this light that will from object, mean to say if an animal is seeing something, then the thing will pass towards the conjunctiva, then towards the cornea, then aqueous humor, then lens, then vitreous humor, and lastly, it lies upon the retina. Then it will make a reflection and percept or intercept or interpret the exact object or the shape and size of the object. Then again, at the same time, nerve impulse is also required. And basically rods and cone cells, they played an important role, and they played on retina, then synapse, then bipolar nerve cells, then ganglions, optic nerves, and then it will pass towards the occipital lobe of brain. And
This will complete the circulation, or you can say the circuit, by which the eye of an animal can interpret the things or the object what they are seeing. So these are the simple steps. So regarding classification of vision, so many animals we have, mean to say so many species we have, and they have some different types of vision. Mean to say, like one of type is monochromacy. That is, under this only one type of cone cells that will act. And it is marine mammals like dolphins or this whales, all monkey. It is not all common monkey, it is all monkey. That is a monkey which has the facial expression like all monkey and Australian sea lion. These are the monochromacy because they are having only one type of cone cells. Next thing is trichromacy. That is the animals that have two types of cone cells, like cats, dogs, horses, and cattle. Next is trichromacy. That is the animals are having three types of cone cells, like humans, like us, and bees. Then again it is tetrachromacy, that animals are having four types of cone cells. So like birds, fish, amphibians, and reptiles. So these are the various classifications you can say under the vision. And the another one is the infrared vision. That is in the snakes this will have. So while talking about the monochromacy, this is the only one type of cone cell. This contains only the cells of having only one type. And the visuality is in between black and white only. Okay. So these animals like marine mammals, all monkey and Australian sea lion, they can have vision in only black and white color. Okay. Only these two colors they can see. In humans, diseases of full color blindness leads to monochromacy. If any human being is having color blindness, then the proportion of these cone cells will become one of only one type. That is known as the condition monochromacy. Also, night vision is in humans, that is also comes under this monochromatic. The next thing is dichromacy in cats, especially. Dichromacy is will cover so many animals, but especially in cats, there are some difference. So we will discuss it. In cats, what happens? The aperture for the view, field of view, that is 200 degree. Mean to say they have a vision. If any cat stands in a specific place, then they have 200-degree vision. And regarding depth perception, that is not so much very good, but objects will maximum up to 20 feet away can be focused on. And objects too close to the eyes can't be focused on. मतलब बिल्ली जो है अगर उसके आप बहुत ज्यादा करीब चले जाते हो तो दे विल कंफ्यूज्ड, ठीक है, वो एग्जैक्टली वो पिक्चर नहीं बना पाएंगे, तो वो दे कैन इनकैपेबल टू आइडेंटिफाई और टू ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट्स. एक्विटी की बात जब करते हैं तो देयर डे टाइम विजन इज 6 times ब्लरियर देन दैट ऑफ ह्यूमंस, ठीक है. क्योंकि कंपैरिजन ह्यूमन से किया गया, इससे थोड़ा समझना इजी हो जाता है कि ह्यूमन से 6 times ब्लरर होते हैं कैट के विजन, स्पेशली इन द डे टाइम. लेकिन नाइट में क्या होता है, इट गोज इन अपोजिट डायरेक्शन. मतलब 6 से 8 गुना अच्छा देख सकता है ह्यूमन से रात में, है ना. तो परसेप्शन ऑफ मोशन जो है दैट इज वेरी गुड. रात में भी कितनी भी मूवमेंट है तो किसी भी चीज को वो तुरंत ट्रैप कर सकती है. Then regarding this color differentiation,
10 times lesser cones than humans in the macula. Okay. और मोस्टली जो कलर्स जो कैट्स देख सकते हैं दैट आर ब्लू, येलो एंड ग्रेज. आप समझ सकते हो कि अगर एक बिल्ली आपको देख रही है और आपने लाल रंग का टी शर्ट पहन रखा है या कोई भी लाल रंग का टॉप लगा रखा है तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकती है. ओनली ब्लू, येलो या ग्रे ही वो देख सकता है. अब यही डायग्रोमेसी अगर डॉग्स की बात करें तो इसकी जो विजिबिलिटी होगी दैट इज फॉर 240 डिग्री सेल्सियस. सेल्सियस बोल रहा हूँ, 240 डिग्री मतलब 240 डिग्री तक, मतलब कैट से थोड़ा ज्यादा देख सकता है. ठीक है. प्रीवियस क्लास में भी बता रखा था ये जो विजुअलिटी होती है दैट इज दो तरह की होती है, एक मोनोकुलर होती है, एक बाइनोकुलर होती है. ठीक है, उसको लेटर स्लाइड में बताते हैं. तो बेसिकली क्या है कि दोनों आंखों, जो पेयर ऑफ आईज वी हैव और द एनिमल्स आर हैव, तो वो जितना नजदीक होगा, ठीक है, या जितना सामने होगा या साइड में होगा, उससे आपके जो विजन है वो चेंज होती है. तो ये फील्ड ऑफ व्यू जो है डॉग्स आर हैविंग 240 डिग्री, सो दैट इज मच देन द कैट. रिगार्डिंग डेप्थ परसेप्शन, नियर साइटेड, ठीक है, दूर की चीजें नहीं देख सकते हैं. बेटर डेप्थ परसेप्शन देन कैट्स एंड द सेंट्रल बाइनोकुलर फील्ड हेल्प्स इन डेप्थ परसेप्शन. ठीक है, मतलब कैट से तो अच्छे देख सकते हैं, लेकिन इनकी कैट के देख रहे होगे नजदीक की इनकी ठीक नहीं है साइट, लेकिन डॉग्स की साइट नजदीक वाली ज्यादा अच्छी है बशर्ते में इन कंपेरिजन टू दूर वाली. और जो सेंट्रल बाइनोकुलर फील्ड जो होती है वो इनकी काफी अच्छी होती है, इसलिए काफी दूर तक भी देख सकते हैं. ठीक है, कुछ स्पीसीज जो है वो काफी दूर तक भी देख सकते हैं. एक्विटी की बात करें तो 20 to 40% डेट ऑफ ह्यूमंस. ठीक है, एज इट इज है, but it generally depends greatly on clarity of cornea, aqueous humor, lens and vitreous humor. इसलिए कहते हैं कि अगर कोई डॉग रियरर है, ठीक है, तो उनको उनके कुत्ते पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है. Regarding perception of motion, 10 to 20 times they are more sensitive to motion than humans, even at dusk. ठीक है, और मतलब अगर ब्लरीनेस भी है इन्वायरमेंट में तो they can have more perception of motion. Regarding color differentiation, two cone cells they have, so blue and yellow, they can be differentiate blue and yellow, but not red and green. ठीक है, तो यहाँ थोड़ी सी फिर चेंज हो गई कैट्स के रिगार्डिंग. अब देख सकते हो जैसे ह्यूमन की विजुअल स्पेक्ट्रम, एंड दिस इज द कैनाइन विजुअल स्पेक्ट्रम. तो यहाँ जो लास्ट क्लास में ये सॉरी जो प्रीवियस स्लाइड में बता रहा था ना, ब्लू और येलो दे कैन हैव, बट दे कांट सी रेड एंड ग्रीन. देख सकते हो इस कैनाइन विजुअल स्पेक्ट्रम में कहीं भी रेड और ग्रीन नहीं है, लेकिन ह्यूमंस में ऑलमोस्ट ऑल 7 कलर्स. ठीक है, जो रिक्वायर्ड है. नेक्स्ट बात करते हैं डायक्रोमेसी इन हॉर्सेस. तो फील्ड ऑफ व्यू जो होती है दैट इज वेरी वाइड, ऑलमोस्ट 350 डिग्री. ठीक है, उसमें 350 डिग्री में भी क्या है, 285 डिग्री है दैट इज मोनोकुलर एंड 65 डिग्री इज बाइनोकुलर. ठीक है, इसके साथ साथ दे आर हैविंग 3 ब्लाइंड स्पॉट्स इन बिटवीन द आईज. मतलब दोनों आंखों के बीच में 3 जगह ब्लाइंड स्पॉट्स भी बनते हैं, एंड दैट आर एग्जैक्टली बिहाइंड द हेड एंड अंडर द चिन. ठीक है, सामने के नजर में कहीं कोई दोष नहीं है, जो भी है वो बिहाइंड द हेड है और अंडर द चिन. नेक्स्ट when we were asking for depth perception, then it is using binocular field of vision. ठीक है, एक्विटी की बात करें तो डू नॉट एडजस्ट वेरी क्विकली टू सडन डार्कनेस. बिल्कुल अगर अचानक से डार्कनेस होगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू एडजस्ट देम. एंड गुड एक्विटी इन बाइनोकुलर फील्ड दैट इज कॉल्ड विजुअल स्ट्रिक. ठीक है, काफी मतलब अगर मूवमेंट में भी कोई चीज है तो भी उसको बड़े अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकता है. और अब देख सकते हो इस पिक्चर में ऐसा दिखाया गया है, इधर मोनोकुलर है और बाइनोकुलर है.
तो मोनोकुलर का देख सकते हो ग्राफ कहाँ से कहाँ जा रहा है ना। एक से दूसरा जो मोनोकुलर जाता है तो उस दोनों के बीच का जो मतलब परपेंडिकुलर जो दोनों बन रही है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज बाइनोकुलर। तो मोनोकुलर तो हो गया, ये नजदीक के लिए हो गया, लेकिन बाइनोकुलर जो हो गया ये दूर के लिए हो गया। ठीक है, तो इस जो हॉर्स की होती है सबसे अच्छी इसमें होती है। कैटल की बात करें तो ऑलमोस्ट दे आर ऑल्सो हैविंग 340 डिग्री ऑफ फील्ड व्यू, और उसमें जो होती है 310 डिग्रीज फॉर पैनोरामिक और 25 टू 30 डिग्रीज बाइनोकुलर। ठीक है, और जो ब्लाइंड स्पॉट होती है दैट लाइज एग्जैक्टली बिहाइंड द हेड, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। डेप्थ परसेप्शन की बात करें तो इट इज ऑल्सो वेरी पुअर, स्पेशली इन डिम लाइट। मतलब दिन के समय दे कैन हैव अ वेरी क्लियर विजन, बट रिगार्डिंग द डिम लाइट और ड्यूरिंग द नाइट टाइम, these cattle, they felt very sorrow regarding the vision. Okay, regarding acuity, they have slit-shaped pupils and weak eye muscles, due to which they cannot focus quickly on objects. ठीक है, बहुत जल्दी से और तुरंत नहीं। इसलिए जिन भी एनिमल्स में ध्यान दिए होगे कभी कि वट एवर, मैंने किसी भी एनिमल्स में अगर उनकी विजन खराब है तो उनकी स्मेल या हियरिंग बहुत अच्छी होती है। ठीक है, सो रिगार्डिंग परसेप्शन ऑफ मोशन, दैट इज एवरेज टू गुड, इट इज नॉट क्वाइट गुड बट इट इज इन बिटवीन एवरेज टू गुड। अगर समरी करें इन सब की, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ आवर डोमेस्टिक मैमल्स और स्पीसीज दैट कम अंडर दिस क्लास, अंडर डाइक्रोमेसी। ठीक है, all those mentioned above have a special set of cells on their retina which enable them to see clearly at night, and this is called the tapetum lucidum. Okay. So it takes in the most minimal amount of light available and reflects in back out to make the animals be able to see the object more clearly. क्योंकि ये जो tapetum lucidum, that is a pigment, और जो बिल्कुल डीम लाइट आती है तो उसको क्या करता है, ये एक तरह से एब्जॉर्ब करता है और उसको, मतलब एक तरह से क्या बोलो, एब्जॉर्ब करके ये पिगमेंट क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है और काफी रोशनी में उसको मतलब इंटरप्रिटेट करता है, और बड़ा इजीली वो सारा चीज समझ सकता है, देख सकता है। ठीक है, मतलब इंटरप्रिटेट कर सकता है। तो ऑलमोस्ट टेपेटम लूसिडम जो है ऑलमोस्ट सारे एनिमल्स में है, लेकिन दीज आर एब्सेंट इन पिग्स एंड प्राइमेट्स। ठीक है, तो इनको रात में देख पाना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज दे डोंट हैव सच टाइप ऑफ पिगमेंट्स। ये तो डाइक्रोमेसी की बात थी, अब हम ट्राइकोमेसी पे आ गए। ठीक है, दैट इज ट्राइक्रोमेसी मीन्स 3 टाइप्स ऑफ कोन सेल्स। तो बेसिकली इसमें ह्यूमंस और बीज हैं। ह्यूमंस जो है दे कैन सी रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, जो भी है सारी कलर, एंड दे आर ऑल्सो हैविंग मोनोक्रोमेटिक विजन एट नाइट, मतलब रात में सिर्फ सिंगल कोन सेल्स ही चलते हैं। हाँ, बीज की बात करें तो दे कैन सी येलो, ब्लू एंड अल्ट्रावायलेट। और ये जो अल्ट्रावायलेट है ये सबसे कह सकते हो एडवांटेजियस कलर जो बीज में मिली है, दैट इज बिकॉज दिस अल्ट्रावायलेट विजन helps these bees to detect color patterns on petals that guide them to nectar. वो जो अल्ट्रावायलेट रेज जो आती है वो जब पेटल्स पे छोड़ती है तो उसके थ्रू उसको पता चलता है नेक्टर किधर है ना, तो कहाँ उन्हें नेक्टर कलेक्ट करने जाना है वो दिख जाती है। Also they have compound eyes, so each lens produces 1 pixel. तो आप समझ सकते हो कि इतनी छोटी सी बीज जो होती है, बट दे आर हैविंग अ वेरी गुड विजन। ठीक है, लो रिजोल्यूशन होती है उनकी, मतलब विजन जो होती है उनकी काफी ब्लर होती है, लेकिन जो विजन ब्लर है, रिजोल्यूशन लो है, लेकिन कलर जो है वो दैट इज वेरी मतलब वो नाइसली दे कैन अंडरस्टैंड बिकॉज दे आर हैविंग दिस अल्ट्रावायलेट विजन्स। तो ट्राइक्रोमेसी हो गई। दिस इज द टेट्राक्रोमेसी दैट प्रेजेंट इन
स्पेसिफिकली इन द बर्ड्स। अब क्या है, मोर लाइट रिसेप्टर्स एंड मोर नर्व फाइबर्स टू द ब्रेन। ठीक है, टेट्राक्रोमेसी की बात करें तो जो लाइट रिसेप्टर्स होगी वो नर्व फाइबर्स को ज्यादा जाएगी। सो बर्ड्स ऑफ प्रे, ठीक है, they are having more density of photoreceptors in their retina, and also at the same time they are having greater visual acuity and placement of eyes to create binocular vision, leading to better depth perception, like eagles या pigeons कह सकते हो। ठीक है, तो ये बर्ड्स में टेट्राक्रोमेसी है, मतलब दे आर हैविंग द बाइनोकुलर विजन। देख सकते हो जो जो आईज पेयर्स होती है, पेयर आईज, वो क्या होती है, बिल्कुल दोनों मतलब साइड वाइज होती है। ठीक है, तो उसका जो रिफ्लेक्शन बनता है दैट इज द बाइनोकुलर, और वो काफी दूर तक दे कैन हैव देयर विजन। नॉकटर्नल बर्ड्स के बारे में कहें तो मोर डेंसिटी ऑफ रॉड सेल्स आर देयर एंड दे हैव वेरी लो नंबर ऑफ कोन सेल्स। और ये जो सेल्स होते हैं दैट आर ट्यूबुलर एंड आईज आर आल्सो लाइक ट्यूबुलर। दे आर हैविंग बेटर नाइट विजन लाइक ऑल्स, है ना। सी बर्ड्स की बात करते हैं तो दे हैव रेड और येलो ऑयल ड्रॉपलेट्स इन द कलर रिसेप्टर्स टू इंप्रूव डिस्टेंस विजन, स्पेशली इन हेजी कंडीशंस। जैसे टर्न्स है, गल है, एल्बास्ट्रोसिस है, तो ये सब जो सी बर्ड्स हैं ये काफी दूर तक, क्योंकि पानी और कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो इनको काफी दूर तक जाना होता है। तो उसके लिए जो रेड और येलो ऑयल ड्रॉपलेट्स जो दिया है इनके कलर रिसेप्टर्स में, दे विल इंप्रूव द डिस्टेंस विजन। ठीक है, मतलब मौसम चाहे कितना भी खराब हो, दे कैन हैव अ बेटर विजन अमॉन्ग ऑल द अदर स्पीसीज। परसेप्शन अगर मूवमेंट के लेके करे तो दे आर फ्लिकरिंग एट अ रेट मोर देन 50 हर्ट्ज, दे कैन बी सीन बाय बर्ड्स। ठीक है, मूवमेंट स्लो होगी जैसे जैसे सन विल गोइंग टू सेट। ठीक है, सनसेट के साथ साथ मतलब सन के सेट होते होते ये मूवमेंट भी इनकी स्लो हो जाती है, लेकिन उससे पहले काफी ये तेज रहते हैं, है ना। दिस इज रिगार्डिंग द बर्ड्स। अब टेट्राक्रोमेसी अगर फिश में हम बात करते हैं तो जो विजन होती है फिश की, दैट वेरीज बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज। सम आर हैविंग अल्ट्रावायलेट विजन्स एंड सम आर हैविंग पोलराइज्ड विजन। तो ये क्या करते हैं, दे कैन फोकस द, जो फोकस होती है उसको एडजस्ट कर सकता है, ठीक है, बाई मूविंग द लेंस क्लोजर और मेकिंग देम फर्दर फ्रॉम द रेटिना। रेटिना से मतलब उसके पास या दूर करके ये अपने विजन को करेक्ट कर सकता है। सो दे हैव विजुअल अडेप्टेशंस बेस्ड ऑन देयर एनवायरमेंट्स। ठीक है, पैसेज एंड अब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट इन डिफरेंट वाटर्स enables fishes to see longer or shorter wavelengths of colors। ठीक है, मतलब पानी अगर गंदा है या साफ है, ठीक है, तो उसके हिसाब से वो लेंस को रेटिना के हिसाब से आगे पीछे करके मेंटेन कर सकता है। मोस्ट फिशेस दे आर हैविंग फिक्स्ड पिपल साइज, जैसे शार्क और रेज होती है, और जो स्पीसीज होती है दे आर विथ स्फेरिकल लेंसेज। जो फिश होती है दैट आर हैविंग स्फेरिकल लेंसेज एंड दी स्फेरिकल, जो स्फेरिकल लेंस होती है स्फेयर टाइप की, तो ये क्या करती है, किसी भी इमेज को काफी शार्प दिखाती है। तो एग्जैक्टली वो मतलब इंटरप्रिटेट कर सकता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा है ना, कैसा है, किस शेप में है, किस साइज में है, दे कैन वेरी गुड इंटरप्रिटेंसी। लास्टली हम बात करते हैं इंफ्रारेड विजन की। तो इंफ्रारेड विजन जो होती है स्पेशली दीज आर प्रोवाइडेड इन द स्नेक्स। सो they have a low resolution color vision, ठीक है, in the day, but plenty of rod cells for vision at night। बेसिकली आपने देखा भी होगा सांप में दिन में सांप काफी कम निकलते हैं, बिकॉज एक तो कलर विजन का प्रॉब्लम है और दूसरा सेल्स की, मतलब जो फोटोक्रोमेटिक सेल्स हैं दैट आर वो काफी कम है, कोन सेल्स, रॉड सेल्स ज्यादा है, इसलिए ये जनरली रात में ज्यादा एक्टिव होते हैं।
अब एक पिट ऑर्गन्स उसमें होता है ना, दैट इज द स्पेशल सेंसरी टूल्स। देखते हो ना वो बीच में एक बोलते हैं ना जीभ निकालते रहता है सांप, वो क्या है? दैट इज अ पेयर ऑफ होल्स। ठीक है, these pit organs, they are the pair of holes on either side of the snout between the eye and the nostril. और क्या होता है? These are suspended in each pit is a thin membrane that detects heat. मतलब वो जो बोलता है कि जो जो इसकी पिट है, ठीक है, तो ये क्या करता है? दैट कैन डिटेक्ट द हीट, मतलब जो सराउंडिंग की हीट है उसको डिटेक्ट करके दे कैन आइडेंटिफाई कि यहाँ पर कोई एनिमल है, मतलब कोई उसका शिकार है, या फिर कोई पत्थर है जो गर्म है, क्या कैसा है, वो दे कैन हैव आइडेंटिफिकेशन। तो जो नाइट विजन होती है इंफ्रारेड के कारण, जो स्नेक्स होते हैं ये काफी एक्टिव होते हैं रात में, और काफी क्या बोलो मतलब so these they are having a neural receptor that is TRPA1, और ये जो रिसेप्टर है दैट ट्रांसफॉर्म्स दिस इंफ्रारेड टू नर्व सिग्नल। ठीक है, जो इंफ्रारेज है इनको नर्व सिग्नल्स में ये ट्रांसफॉर्म करती है, और वहां से फिर ब्रेन से ये वापस पिट ऑर्गन्स में इंफॉर्मेशन लाती है along with the trigeminal nerves, and by which they can have a picture that, मतलब वो गर्मी से, ठीक है, सामने जो गर्म है उस हीट से दे कैन डिटेक्ट दैट विच टाइप ऑफ एनिमल एंड इन विच शेप एंड साइज, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कैसा है, दे कैन interpret it with the help of these trigeminal nerves and so things. So this is almost all